Good evening, ladies and gentlemen. I, CS Pooja Shukla, welcome you all to the 17th episode of Talk on my Facebook page. And today, in this 17th episode of Talk on the Facebook page of CS Pooja Shukla, we have with us CS Mohit Saluja. CS Mohit is a commerce graduate from Ranchi University. So, first of all, we should welcome him. Welcome, Mohit. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. CS Mohit is a commerce graduate from Ranchi University, an associate member of the ICSI, and a law graduate. Presently, he is working as a company secretary in Visual Estates Private Limited, one of the group companies of Dalmia Groups. Before joining Dalmia Groups, he was associated with Basukinath Food Processors Limited, including unit of ITC company. During his career span of 5 years, Mr. Saluja has had several notable achievements in his respectable fields. And apart from being a very good and famous company secretary, he is also teaching and mentoring students of ICSI, and he is a very famous faculty of EIRC and Hooghly chapter. And he has been faculty of ICSI, EIRC and Hooghly chapter for various career awareness and skill development programs as well. He was winner of Best Participant Award at 107th MSOP, MSOP conducted by ICSI, EIRC, Kolkata. Mr. Saluja is an executive member of ASHAI, an NGO working for educational development. And today he is here for speaking on a very important and pertinent topic related to the profession of company secretaries. And that topic is company secretaries, pillars for Atmanirbhar Bharat. So as we all have been witnessing this concept or this term Atmanirbhar Bharat, and especially since the lockdown started after the COVID-19 outbreak. So today, Mr. Saluja is here for speaking on this topic. So now, without wasting your time anymore, I'll take you to Mr. Mohit Saluja. And Mohit, we welcome you once again to this program. And now, you have all the liberties of starting your talk, and now the program is yours, and I'll join you back in the question answer session. So over to you, Mohit. Thank you, Pooja ma'am. Thanks to all the viewers who have currently joined the programs. So the ideal objective of this program and the topic is to motivate the company secretaries and all the Facebook viewers and my friends who are added, because somewhere we all are in a stage where we need to become Atmanirbhar, and definitely we are all planning and working on it, but then there is a bit of hand holding which is required, and then we as a company secretary play a vital role in hand holding the entrepreneurs or the skill developers to come and lead their shows. But it is only possible once you have some guidance and some legal guidance and the other guidance which are required to run your show, run the business, and contribute to the economy. So जब भी मैं कंपनी सेक्रेटरीज की बात करता हूँ, एक लेमैन को अगर मुझे ये समझाना होता है कि कंपनी सेक्रेटरीज का रोल क्या है, तो कंपनी सेक्रेटरीज का रोल मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ. मे बी इन माई सेमिनार्स, द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, उनके लिए ये कुछ नया नहीं होगा, बिकॉज दे माइट हैव हर्ड दिस. But then to all my viewers who are not from the fraternity, उनको एक बहुत अच्छा और एक simple example देता हूँ कि what we as a company secretary do for you all and the economy, and what are the rules and regulations and how we work.
एकदम सिंपल सा लेमन लैंग्वेज है ये कि हमारा जो वर्क प्रोफाइल है या जो काम हम करते हैं उस काम को कंपेयर कर सकते हैं आप एक नॉर्मल पुजारी या जो मौलवी होते हैं या जो एक गुरुद्वारा के बाबा जी होते हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब आपके घर में कोई एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग सारे विधि विधान को फॉलो करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, एंड देन वी कॉल द प्रीस्ट टू कम एंड परफॉर्म द रिचुअल्स। तो अगर आप बात करेंगे कि यू नो व्हाई दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड एंड कंप्लीटिंग द रिचुअल्स एट होम, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तो मैं विजा विज एक कंपैरिजन शीट आपको बताता हूँ। एक जब एक बच्चे की जन्म होती है तो हम बोलते हैं कि एक शुभ काम करवाते हैं, पंडित को बुलाते हैं। लाइकवाइज जब आपके मन में एक आइडिया आता है कि आपको एक बिजनेस के बेबी को इनकॉर्पोरेट करना है, एक बिजनेस आइडिया है जो एक बेबी की तरह आपके दिमाग में है, बट देन नाउ यू वांट टू ब्रिंग इट आउट एंड एक्सपैंड योर होराइजन। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास आइडियाज जरूर होती है बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ द फील्ड वेयर यू आर वर्किंग, बट देन कुछ आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन और हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, वो हम कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नॉर्मल सा ट्रेडिंग बिजनेस चाहते हैं करना, अब क्या है वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन के प्रति मूव कर रहा है, तरफ मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक एंटिटी की इनकॉर्पोरेशन की जरूरत होती है। फिर आपका एक वेबसाइट आता है, फिर एक मोबाइल ऐप आता है जिसके जरिए आप लोगों तक पहुंचते हैं और ये काम करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फेज, बर्थ ऑफ अ बेबी। सेकेंड स्टेज क्या होता है? यूजुअली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं घर में तो सबकी शादी होती है। लाइकवाइज अगर आपके पास में बहुत सारे कंपनीज हैं या अच्छे कंपनीज हैं जिनका प्रपोजल है आपके साथ में, मे बी फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्टिकल्स हैं जिनको मर्ज करके आपको एफिशिएंटली बिजनेस को रन करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो पीपल प्लान फॉर मर्जर्स। लाइकवाइज अगर आप एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो जब बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी होती है, तो फिर अगेन प्रिस्ट्स कम इनटू पिक्चर। एक पुजारी का जरूरत पड़ता है, एक मौलवी की जरूरत पड़ती है, या एक बाबा जी जो गुरुद्वारा में रहते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, तब फेरे होते हैं और शादी होती है। तो मर्जर एंड अमलगमेशन की भी ऐसी प्रोसीजर होती है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में इनको। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी हाउएवर यू नीड टू ड्राफ्ट लॉट ऑफ petitions and then you need to present it to NCLT। वो अप्रूव होती है, उसके बाद आपका कंपनी मर्ज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द मैरिज ऑफ टू कंपनीज एक्चुअली। और लाइकवाइज जो लास्ट स्टेज होता है ह्यूमन लाइफ का, डेथ। अगर आप कोई कंपनी है जिसको आप कोई एक प्लान करके स्टार्ट किए थे, बट देन अगर आप आज उस प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आप उसको शट डाउन कर देने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा लगता है कि टेक्निकल फॉल्ट या नेट में कोई इश्यू होने के चलते हमारा संपर्क मोहित से टूट गया है। सो हम यहाँ मोहित का इंतज़ार कर रहे हैं। वो जैसे ही वापस आते हैं मैं उनको जोड़ती हूँ आपके साथ।
कुछ नेट इश्यूज हुई थी मैम, शायद आ गया हूँ मैं। कोई बात नहीं है, अभी बारिश का मौसम है तो ये परेशानी होती है, आप कंटिन्यू करें। तो मैं जो कंपैरिजन कर रहा था, एक लाइफ ऑफ अ पर्सन विद द लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट एंड हाउ कंपनी सेक्रेटरीज एंड प्रीस्ट कैन बी साइमल्टेनियसली कंपेयर्ड टू ईच अदर, ये एक पहला फेज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जस्ट फॉर अ लेमैन पर्सन। ओके, अब यूजुअली क्या है कि लोगों के पास में एक बिजनेस मॉडल है, बिजनेस आइडिया है, लेकिन बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कौन बताएगा? वी एज अ कंपनी सेक्रेटरीज आर देयर टू हेल्प यू एंड वी आर दी पाथ शोअर टू यू। हम एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे हम आपको एक रास्ता दिखाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो आया है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने और एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है जहाँ एक एवरीवन हैज टू टेक द अपॉर्चुनिटी। पैंडेमिक एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे लोग स्टार्टिंग में वी ऑल वेटेड कि ये 21 डेज में ओवर हो जाएगा, 7 डेज में ओवर हो जाएगा, 14 डेज में ओवर हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो अब हमें इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही जीना है। तो अब क्या है, ट्रांजिशंस लाना है अपने लाइफ में, सिर्फ अपने लाइफ में नहीं, अपने वर्क कल्चर्स में एंड अपने सारे पर्टिकुलर जिस तरह से हम लोगों का लाइफस्टाइल है, सारी चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। ट्रांसफॉर्मेशंस लाने की जब हम बात करते हैं तो आज अगर आप देखेंगे तो नोकिया एक फोन था जो हिस्ट्री हो चुका था, क्योंकि नोकिया ने जो है ना इनोवेशंस को एकोमोडेट नहीं किया था। तो आज जैसे अगर आपके पास में एक छोटी सी दुकान थी जो आप रन कर रहे थे, जिससे आपका घर चल रहा था, तो अब वो अगर आप सिर्फ दुकान पे निर्भर रहेंगे तो आपके लिए डाउन द लेन थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज अब सिचुएशन चेंज हो रहा है। तो कैसे उस बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उस बिजनेस को हम ऑनलाइन लेके जाएंगे, कैसे हम उस बिजनेस को इस तरह से बनाएंगे जहां पे आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं सारी चीजें, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है और काफी सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही है, विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देर 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 इज अ मिथ, लोग बात करते हैं ऐसा कि बहुत नेगेटिविटी आ गई है, बिजनेस के डाउनफॉल्स हो रहे हैं, बिजनेस का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एक सोच को बदलना होगा। देयर हैज टू बी अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ अ पर्सन, वेयर इन people have to select the model of the business as per the requirements of the end users and the consumers. मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिनका बहुत सारा एरिया है जहाँ पे अभी भी बहुत ग्रे मार्केट है, द एरिया ऑफ मार्केट वेयर पीपल आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट प्रोडक्ट्स। सो इसमें क्या है कि हम वो प्रोडक्ट्स लाइंस को टारगेट कर सकते हैं और जो बिजनेस मॉडल है उसमें इनोवेशन डाल सकते हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजी। नाउ कंपनी सेक्रेटरीज का रोल एक सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेशन तक सीमित नहीं है, to be very specific. So if someone approaches a company secretary and asks कि सर मुझे ये काम करना है, आप मुझे एक हैंड होल्डिंग दीजिए, एक रास्ता बताइए कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो यहाँ तक नहीं कि सर आपका ये पेड अप कैपिटल का अमाउंट है, आप इतने रुपए लगा सकते हैं और आप ये बिजनेस चालू कर दीजिए। यहाँ अपना काम नहीं खत्म हो रहा है, यहाँ से आगे भी आपका काम है जहां आप उनको कनेक्ट करवाएंगे। मे बी आपके टीम ऑफ पीपल हैं या कोई जानकार लोग हैं, या आप एक पर्टिकुलर डेटाबेस मेंटेन कीजिए कि आई एम वर्किंग फ्रॉम कोलकाता एंड आई हैव these many people who are in my list who are working towards development of software। तो आज आप कंपनी बना दिए, उनको अगर आईटी की रिक्वायरमेंट है तो आप उनका आईटी से कनेक्शन करवाइए। मीनवाइल यू कैन ऑल्सो become an interpreter, briefer actually of the business model to the software developer, wherein you will highlight कि किन सारी चीजों की जरूरत है सर इन बिजनेस, इस पर्टिकुलर बिजनेस में, and you can then bring in updates and upgrade the business software likely। तो इससे क्या है कि जो एंड यूजर है, जो आपका क्लाइंट है, वो काफी खुश होगा कि this person has some different ideas also which he is also helping me with। तो अगर आज आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आपका रोल सिर्फ ये नहीं है कि सर आपने मुझे बोर्ड रेजोल्यूशन बनाने दिया है और मैं बोर्ड रेजोल्यूशन बना ले रहा हूँ, आपने मुझे एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट करने दिया है तो अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दे रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। अब कंपनी सेक्रेटरीज के अंदर भी ये बात आनी चाहिए। अभी मैं जब यंगस्टर से मिलता हूं तो बहुत लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस होता है कि सर मुझे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी से ही करनी है। तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी में ही आप जाओगे तो आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक मीडियम साइज एमएसएमई कंपनी में से अभी भी बिलोंग करता हूँ, जहाँ हम फूड इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, जहाँ हमारा स्टॉक मार्केट है, जहाँ वी हैड इंश्योरेंस ब्रोकिंग वर्क। तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इतना एक्सपोजर इसलिए मिला है बिकॉज आई नेवर हैड दैट थॉट इन माइंड कि मुझे एक लिस्टेड कंपनी में जानी है। क्योंकि अगर आप एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग या इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, तब आपको एक आईआरडीए के कंप्लायंसेस का चार्ट के बारे में पता चलेगा कि आईआरडीए की फंक्शंस क्या है, आप आईआरडीए को की नॉर्म्स को, सर्कुलर्स को कैसे कंप्लाई करते हैं। एक कंपनी को अगर इंश्योरेंस बेचनी है और अगर इंश्योरेंस का काम करना है तो वो कैसे कर सकता है। बहुत सारे ऐसे सिनेरियो आते हैं जहां आपका एक अच्छा ग्रुप होता है, वो बात करते हैं आपसे कि भाई मेरे पास तो से सेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो इसको अगर मैं लगाना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं। तो उस केस में भी कंपनी सेक्रेटरी कैन कम एज अ कॉर्पोरेट प्लानर। ओके, मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील दैट India is becoming a entrepreneur capital in future, wherein a lot of young generation people can come forward with their ideas, and it is our role to brief them about how to implement those ideas. Okay, somewhere in our classes, अगर मैं स्कूल की बात करूं, अगर बैक इन 2005 या 7 की बात करूं, तो स्कूल में हर एक इंसान जो जब टीचर्स पूछते थे कि क्या बनना है आपको, तो दे यूज्ड टू रेज देयर हैंड एंड से दैट मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर्स बनना है। तो why don't we bring those engineers and doctor with us to form an entity wherein we can provide them services at home, where patients can be treated with the technology, where the ग्रोसरी जैसे ग्रोफर्स है या बिग बास्केट है, तो ग्रोसरी रीचेस द पर्सन। लोग सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोसेसेस, मतलब हर थ्रेट जो अभी दिख रहा है उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी दिखनी चाहिए हमें। और अपॉर्चुनिटी मैं गारंटी देता हूँ ऑल माय व्यूअर्स, अगर कोई भी एक व्यूअर है, अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि हाँ मुझे क्या इस पर्टिकुलर सेशन को देखते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचा है या नहीं है, तो सोचा होगा, पक्का सोचा होगा। तो वो अपॉर्चुनिटीज को आपको बात करनी होगी, डिस्कस करना पड़ेगा। करेक्ट पीपल, यू हैव टू होल्ड दी हैंड्स ऑफ करेक्ट पीपल हु कैन गाइड यू कि हाँ दिस इज दी। एक तो होता है मिथ, एक होता है परसेप्शंस। तो ये मिथ और परसेप्शन से बाहर निकलने के लिए यू नीड टू कैच एन एप्रोप्रिएट पर्सन हु कैन हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। ओके, जैसे मैं एक फूड ग्रेन कंपनी हूँ और मुझे फूड ग्रेन्स में डील करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे लॉजिस्टिक्स का जरूरत पड़ेगा। अगर मैं फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करके रख लिया हूँ तो वैसे काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या, फिर अगेन इंटीग्रेशन की बात आती है कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाउ डू यू कम इनटू एन एग्रीमेंट। अगर आप एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए यू विल रिक्वायर अगेन एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। उसके बाद यू नीड टू डील विद द बैंकर्स, एंड you have lot of issues with regard to opening of an LCs, and फिर आपको UCP comes into picture, that is international laws comes into picture। तो एक एक पर्टिकुलर चीज आपको एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज रखना होगा उसमें, क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन विल कम इनटू पिक्चर वंस योर पेमेंट इज नॉट मेड क्लियरली डन बाय द इंपोर्टर ऑफ द कंट्री सिटिंग समवेयर इन अब्रॉड। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट देन आपको राइट गाइडेंस की जरूरत हमेशा पड़ेगी, और वो दैट विल बी ओनली डन बाय अ पर्सन हु हैज अ वर्क एक्सपीरियंस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज था जो मुझे शेयर करना था। जैसे मैं बात कर रहा था एक इंश्योरेंस कंपनी की, तो व्हाई नॉट यू टेक लीड इन ओपनिंग। जैसे आज क्या है, जैसे आज लोगों के लिए एफएमसीजी आइटम खाना जरूरी है, वैसे एवरी हाउस एंड एवरी पर्सन, पूजा जी यू माइट ऑल्सो हैव एन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अभी कोविड, ये पैंडेमिक, इतना कुछ हेल्थ इश्यूज है, हम तो सोते समय छींक देते हैं तो भी हमें डर लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है क्या। तो this myth is somewhere there in our everyone's mind। okay, तो अब अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको पता है कि आपको बेटर ट्रीटमेंट चाहिए, तो ट्रीटमेंट बेटर चाहिए तो पैसे भी लगेंगे, तो समवेयर इंश्योरेंस कम्स इनटू पिक्चर। तो ये भी एक सेक्टर है जो बहुत लोगों ने अभी बहुत लोगों ने नहीं ट्रैक किया है, और बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं इनकी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हुए।
तो एक एक ऐसा भी आइडिया था, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारा एक एनजीओ है जो जिसके लिए हम प्रोग्राम करते रहते हैं, और काफी एक्टिवली प्रोग्राम करते हैं, दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स एजुकेशनल डेवलपमेंट. बट देन नाउ वी विल कम अप विद द टॉपिक्स लाइक अवेयरनेस ऑफ इंश्योरेंस, विच विल ओनली बी फॉर अ सोशल पर्पज. मैम, हमें कुछ कोई कंपनी ने हमें हायर नहीं किया है कि वो हमें कुछ देंगे, बट देन इट इज अ सोशल अवेयरनेस कि अगर आप 3 लाख रुपए साल का देते, मतलब चाहिए आपको इंश्योरेंस, तो माइट भी 3,000 रुपए में आपको मिल जाएगा. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू पे 3,000 एन ईयर rather than एक बार में 5,000 का बिल देना. तो these are very obvious things which lot of people have not covered. तो अब उससे रिलेटेड एक बिजनेस क्यों नहीं, एंटिटी क्यों नहीं क्रिएट करते हैं हम? एग्रीगेटर्स बन सकते हैं. एग्रीगेटर्स बनने के लिए भी अगेन IRDA की बहुत सारी लाइसेंसिंग की जरूरत होती है. तो वी आर देयर टू हेल्प ऑल द पीपल हु कम अप विद द आइडियाज, एंड डेफिनेटली करते हैं, मतलब कर रहे हैं और करेंगे भी आगे. तो ये जो टॉपिक है पिलर्स, तो इस तरह से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ कि वी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आप बस आइडिया लेके आइए एंड वी आर देयर टू प्रोवाइड यू ऑल द लाइसेंसेस, फंडिंग्स एंड द टाई अप्स एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड. मैं एक चीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे, और जो प्रोफेशन से जुड़े नहीं हैं, काफी ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ प्रोफेशन से जुड़े नहीं हैं, जो हमारे जो एपिसोड्स होते हैं उस पे आते हैं और देखते हैं, और जो उनके अनुसार जो टॉपिक उनको अच्छा लगता है, फिर उसको वो उसके बाद में कमेंट्स वगैरह भेज के उस पे वो अपनी राय भी देते हैं. तो उन उन लोगों की तरफ से जो प्रोफेशन से नहीं है, मैं ये चाहूंगी, चूंकि मैंने देखा है कि आप स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो एक लेमैन जिसको किसी भी न जीएसटी के बारे में पता है, जिसे ना कोई दूसरे टैक्स के बारे में पता है, ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में पता है, ना पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पता है, वो कुछ नहीं जानता है, या सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या करना है नहीं जानता है. तो वो अगर सोचता है कि उसे एक स्टार्टअप खड़ा करना है, तो ऐसे में उसे किसके पास जाना चाहिए? और अगर वो एक कंपनी सेक्रेटरी के पास जाता है, तो फिर उसको एक रूफ के अंदर एक ही जगह पे उसको क्या सुविधाएं उस कंपनी सेक्रेटरी से मिल सकती हैं एडवाइस के तौर पर या हेल्प के तौर पर? यस मैम, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको. तो जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्टअप जो 2005 में एक स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था. तो स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं एज एन इन्वेस्टर तरक्की करूं, देश को भी तरक्की करना होगा. लोगों के दिमाग में अगेन एक मिथ है कि स्टार्टअप उनके लिए है सिर्फ जो टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं. यूजुअली ये होता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, मेरे पास में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नया कुछ आइडिया नहीं है. तो ये सिर्फ स्टार्टअप्स जो है सिर्फ आइडियाज और टेक्नोलॉजीज की बात नहीं है. अगर आप गवर्नमेंट को स्टार्टअप एप्लीकेशन के टाइम में ये प्रूव कर देते हैं कि आप वेल्थ जनरेशन का काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेंगे, तो भी आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिलेगा. स्टार्टअप की सर्टिफिकेट्स लेने का एक बहुत बेसिक, प्रोप्राइटरशिप कैन नेवर बिकम एन स्टार्टअप, मैम. तो ये चीज ध्यान में रखना होगा लोगों को कि अगर मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहा हूँ, बिकॉज द मोमेंट मैं अगर प्रोप्राइटर हूँ और मैं स्टार्टअप में एनरोल कर रहा हूँ, तो मिनिस्ट्री ये सोचती है, गवर्नमेंट ये सोचता है कि इनको अपना टैक्स बचाना है. तो स्टार्टअप हैज टू बी अ वेरी सीरियस वर्क, एंड serious people have to come in collegium with each other and then form an entity where you need to run the startups. तो startups के लिए definitely you either go in the form of partnership firm or LLP or a private limited company. Okay. तो स्टार्टअप्स के लिए ये भी होता है कि यार मेरे को स्टार्टअप की आइडिया है, बट देन देयर इज नो सफिशिएंट फंड. तो स्टार्टअप का कोई फंड लिमिट नहीं है. इवन इफ यू हैव 1 लाख रुपीज, आप अच्छा स्टार्टअप, ये जो मैंने 3 पॉइंट बताया, आपके पास आइडियाज है तो डेफिनेटली यू आर अ गुड स्टार्टअप पर्सन, यू कैन बिकम अ गुड स्टार्टअप पर्सन. अगर आपके पास में एक ऐसा आइडिया है जहां चेन ऑफ पीपल आर कनेक्टेड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, तो भी आप एक स्टार्टअप्स को एनरोल कर सकते हैं. एंड जहां वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है तो भी कर सकते हैं. अब स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स की बात करें तो 2005 में जब ये डिक्लेयर हुआ था, तो इसका कॉर्पस फंड जो सिडबी में के थ्रू डिसबर्समेंट, सिडबी एक बैंक है मैम जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स पे फोकस करता है. तो सिडबी को सिर्फ एंटाइटलमेंट दी गई थी कि स्टार्टअप्स को
गवर्नमेंट फंड्स, जो आप प्राइवेट इक्विटी की प्लेयर्स की भूल जाइए बात, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं। आप मुंबई में जाएं तो मुंबई एंजल्स बोल के इन्वेस्टर्स हैं, कैलकाटा एंजल्स हैं, जो कि दे 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 कम एंड चेक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपके पास में आइडियाज है तो वो तो आप लेकर के आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, अगर आज आप जोमेटो स्विगीज की बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो सिर्फ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स है, वर्चुअलिटी के लिए, क्योंकि आपके पास एक मोबाइल ऐप है। लेकिन आप देखें कि कितने लोग उससे कनेक्टेड है, कितने सारे वेंडर्स है, कितने सारे स्ट्रीट में आपको लोग दिखेंगे जो जोमेटो स्विगीज के लिए होम डिलीवरी कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उस कंपनी से। तो डेफिनेटली अगर ऐसी कोई आइडिया है आपके पास में, अच्छा, इसके बहुत सारे प्रिविलेजेस भी हैं। आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है 3 इयर्स के लिए। अगर आप आईपीआर में जाते हैं, आईपीआर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहां अगर आप एक ब्रांड नेम को अगर ट्रेडमार्क कराते हैं या अपने कोई एक बिजनेस मॉडल्स को कॉपीराइट कराना चाहते हैं, तो उन सब चीजों में हाई कंसेशंस है। अगर आप चाहें तो 60 to 40 to 60% का एक कंसेशनल रेट है जो एक लेमैन बिजनेसमैन जाता है और एक स्टार्टअप वाले लोग जाते हैं, तो उसका प्रिविलेजेस प्लस एक बहुत ज्यादा एसेंशियल प्रिविलेज है, एग्जेम्पशंस बोल सकते हैं, कि लेबर लॉ कंप्लायंसेस आपका एकदम नेल हो जाता है। वो सेल्फ डिक्लेरेटरी कंप्लायंसेस हो जाता है, कि जहां आप मियरली एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि वी हैव ड्यूली कंप्लाइड एंड आप ये स्टार्टअप्स का प्रिविलेजेस। अब आप आइए इस बात पे मैम, जहां पे स्टार्टअप्स की जब बात हो रही है तो कौन स्टार्टअप बन सकता है। लोगों का है कि आज मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा तो मैं स्टार्टअप बनूंगा, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। अगर आपकी कोई कंपनी है जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम रही है और उसको 10 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में नहीं हुआ है आए हुए, से आप 3 साल से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बैठे, आपके पास आइडिया नहीं था, या आइडिया थी लेकिन कॉर्पस फंड्स नहीं थे, या प्रॉपर टीम वर्क नहीं था, तो आज आप उसको स्टार्टअप में एनरोल करना चाहते हैं सारे प्रिविलेजेस जो मैंने बताया, लेबर लॉज, आईपीआर का लेने के लिए, तो वो अगर आपको करना है, इफ यू आर सीकिंग फॉर दैट, तो आज आप जाइए, 10 इयर्स के डेडलाइन से पहले आप जाइए एंड यू कैन गेट, इवन अभी तो 14 डेज के अंदर यू गेट अ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन व्हेन यू कंप्लाई विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स नाइसली। तो ये सारी चीजें हैं। और आईपीआर तो आज के डेट में हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बिजनेस कॉन्सेप्ट ही है जो बेच रहा है लोग। Everyone is selling their business ideas. So once you have those business ideas, you see WhatsApp came into picture, it became famous, and then eventually Facebook bought that idea and is the owner of WhatsApp now. So Instagram was some idea which was brought into by some other founders, but now then Instagram has Facebook has taken that particular business idea. So ideas ही है जो कि बिकते हैं, and we need to focus on that. अब हम बात करते हैं अपने सदस्यों की, जो मेंबर्स हैं आईसीएसआई के। आपको ऐसा लगता है क्या कि वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं, चेंज एजेंट के तौर पे? यंगस्टर्स के लिए मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशंस बोल लीजिए, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज यंग पीपल है। अगर आप लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे तो एनएससी में देर आर 17 into 1800 लिस्टेड कंपनीज। अच्छा, अगर आप लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे वर्ल्ड में, तो वो भी इंडिया में ही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द लीडिंग लिस्टिंग कंपनीज होल्डर्स, मेंबर्स बॉडी, जहां पे सबसे ज्यादा कंपनी पूरे वर्ल्ड में लिस्टेड है। तो नो डाउट लिस्टेड कंपनीज में तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा ही, बट देन आप अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको लिमिटेड मत रखिए। जहां से जो सीखने को मिलेगा वो आप सीख लीजिए, एक्वायर कर लीजिए, ताकि जब व्हेन इट कम्स टू डेलिबरेटिंग अ पर्सन, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है व्हेन वी ट्रैवल, तो कभी ट्रैवल करते करते कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आप पूछने लग जाते हैं प्रोफेशंस के बारे में। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अगर आप एक इम्प्रेसिव आइडियाज डिस्कस करते हैं, यू नेवर नो दैट यू आर बिकमिंग अगेन अ कैटलिस्ट फॉर देम, बिकॉज
आइडियाज तो मैंने बोला ना, ऑल द व्यूअर्स मस्ट बी हैविंग सम और द अदर आइडियाज। अगर आज जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया जरूर है, आप अगर इंडिविजुअली पूछे तो। बट देन कहीं ना कहीं एक डर है, जो डर को मिटाने के लिए हम लोगों की फ्रेटर्निटी अच्छे से काम कर सकती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, जो जो भी हमारे व्यूअर्स आज हैं या जो भी वीडियो बाद में देखेंगे पोस्ट होने के बाद, बहुत सारे लोग बाद में भी देखते हैं, तो अगर उनको स्टार्टअप्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन है या उस पे वो राय चाहते हैं, तो मोहित को वो जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहित जी उनकी पूरी मदद करेंगे, और मदद करने के साथ साथ, पूरी मदद करने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी करेंगे, ताकि एक स्टार्टअप को स्टार्ट करके अच्छे से और उसको जितना अप ले जाना है उतना आप वो लेके जा पाए, ताकि जो कहा गया है, जो जिस विजन से उसको शुरू किया गया है हमारे देश में, वो जो विजन और मिशन है वो पूरा हो। अब इस दौरान खासकर जो ये कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, इसके बाद जो पैकेज भारत सरकार की तरफ से आया, उसमें एमएसएमईज को लेकर के बहुत बात की गई। पहले से भी इट इज ऑफन सेड, मतलब कई बार इसको कहा गया है दैट एमएसएमईज आर ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा एमएसएमई के विषय में, हमारे जो यहाँ दर्शक हैं उसमें कई इन्वेस्टर्स भी हैं, आप उनको बताएं कि एमएसएमई का कॉन्सेप्ट क्या है वर्तमान में, एट इन प्रेजेंट, और एमएसएमई किसी को शुरू अगर मतलब एमएसएमई के डेफिनेशन में फॉल करके जो बेनिफिट लेना है तो वो बेनिफिट कैसे मिले, और अभी जो लोन वगैरह का जो प्रोविजन उसके लिए आया हुआ है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप जो है बैंक को अप्रोच करके यू कैन इजीली गेट लोन और फंड्स अपने काम को करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा प्रकाश इसके ऊपर डालें। एमएसएमई के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी। एमएसएमई का एक डेफिनेशन एग्जिस्ट करता था 2006 में, जहां जो टर्नओवर और जो पेड अप कैपिटल या इन्वेस्टमेंट्स की जो बात होती थी वो थोड़ा कम था। तो अब क्या हुआ है कि उसके होराइजन को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जो 25 लाख रुपीस की एक माइक्रो इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, उसका आज वर्थ 5 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, कि अगर आप 5 करोड़ रुपीस तक हैं, जहां स्मॉल था 5 करोड़, उसको 10 कर दिया गया है, और मीडियम को 10 से 20 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि आपको एक इंडिपेंडेंसी दिया गया है, वेर इन यू कैन ब्रिंग दी। बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि एमएसएमई इज मेजर रोल प्लेयर इन द इकोनॉमी। तो जो ये मेजर रोल प्लेयर है, ये स्टैटिस्टिक्स बोलता है, ये हम नहीं बोलते हैं। 45% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज जनरेटेड बाय एमएसएमई। अगर आज एमएसएमई शट डाउन हो जाए तो 45% ऑफ द पीपल लाइक मी विल बी सिटिंग एट होम, क्योंकि वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन एमएसएमईज। 50% ऑफ द एक्सपोर्ट दैट इंडिया डज, ऐसे तो बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट्स है। ट्रेड डेफिसिट्स क्या होता है? जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो दैट इज ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट्स तो एग्जिट करता ही है इंडिया में, बहुत कम, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हम बिलीव करते हैं इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली। बट देन जितना भी एक्सपोर्ट हम करते हैं, 50% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इज डन बाय एमएसएमई। अगर हम प्लांट, मशीनरीज और इंडस्ट्रीज की बात करें, पूरे इंडिया में जो यूज होता है, 90% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरीज आर ऑल एमएसएमईज। तो और 10% ऑफ द टोटल जीडीपी एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्रीज ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई से आप दूर कभी नहीं जा सकते। एमएसएमई इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द कंट्री एक्चुअली, इकोनॉमी के लिए बात करें तो। और सारे जितने एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस हैं वो एमएसएमई ही मैक्सिमम कर रहा है। अगेन, व्हाइल टॉकिंग टू माय यंगस्टर्स हु आर मोर फोकस्ड ऑन लिस्टेड कंपनीज, वर्किंग ऑन लिस्टेड कंपनीज, तो ऐसा नहीं है। व्हेन यू मैच दी स्टैटिस्टिक्स, तो देयर आर लॉट ऑफ एमएसएमईज हु आर डूइंग वेल। एक बर्गर बेचने वाली कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, बर्गर किंग, विद द विजन दे हैड, तो definitely they were MSME someday when they had opened one आप देखिए अभी कैम्स है एक कंपनी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जो लोगों का पोर्टफोलियो मेंटेन करने पे बिलीव करता है, वो अपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। तो इवेंचुअली दे वेर एमएसएमईज, नाउ दे आर डेवलप्ड कंपनीज एज फार एज their incomes and capital structures are concerned, and eventually they are doing it. तो अगर with the help of company secretary आज आप स्टार्ट कर, तो अगेन एमएसएमई की बात करते हैं तो there are lot of corpus funds which are there arranged by the government to help
to induct lot of funds in the economy so that economy can boost and MSME can be uplifted. तो अब क्या है कि कोलेटरल फ्री लोन्स की भी बात कर सकते हैं हम. कोलेटरल फ्री लोन्स मिलेगा एमएसएमई को व्हेन यू अप्रोच टू बैंकर्स. तो आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है. देयर आर सेक्टोरल कैप्स. महाराष्ट्र में अगर आप जाएं, मतलब स्टेट की बात करें तो स्टेट वाइज इंसेंटिव्स भी बहुत स्टेट ने डिस्कस कर लिया है कि हम अगर ये आप एमएसएमई कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो स्टेट वाइज इंसेंटिव्स भी आपको हम देंगे कि अगर आप ये प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, ये काम कर रहे हो. और अगर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, सरप्राइजिंगली अगर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो एमएसएमई 6500 प्रोडक्ट्स बनाती है. टूथब्रश, टूथपेस्ट, 6500 प्रोडक्ट्स आर मेड बाय एमएसएमईज. तो एमएसएमई का जो आप एम्बिट देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एम्बिट है, कितना सारा चीज है जो एमएसएमई में कवर्ड है. तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हुआ है सूनर और लेटर कि हमें अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो वी नीड टू फोकस ऑन एमएसएमई. तो दैट इज द रीजन दे हैव इंक्रीज देयर लिमिट्स टू इंक्लूड टैक्सेस कम एमएसएमई को. इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल, नॉर्मल कंपनीज विच आर नॉट फॉलिंग अंडर एमएसएमई. लाइसेंसेस जो प्रोक्योर करने पड़ेंगे उनके प्रोसेसेस बहुत इजी हो जा रहे हैं. आप अगर रेस्टोरेंट, होटल सबकी बात करें, दे आर ऑल कवर्ड अंडर एमएसएमईज. दे आर ऑल कवर्ड अंडर एमएसएमईज. तो इवेंचुअली ये पूरा फूड मार्केट हो गया, पूरा एफएमसीजी मार्केट हो गया. दे आर समवेयर एमएसएमईज एंड गवर्नमेंट इज लुकिंग after them and they have come up with the initiative and we, जैसे हमने बोला कि कोलेटरल फ्री लोन्स मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट प्लान नहीं लेके जाएंगे बैंकर के पास में. आपके पास में प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए. डाउन द लेन आपकी आइडियाज क्या है, कितना वॉल्यूम आप ट्रेड आज कर रहे हैं और कितना वॉल्यूम ट्रेड करने का आप सोच रहे हैं कमिंग 5 years में. तो वो सारी प्लानिंग आपको करके जानी पड़ेगी. तो फॉर दोज थिंग्स वी आर देयर कि वी कैन हेल्प द पीपल हु वांट टू continue their business as an MSME also. और मुझे लगता है कि अगर इसको एक लाइन में कहना अगर हम चाहें तो यही कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जो बुनियाद है वो एमएसएमई के ऊपर आज बहुत हद तक खड़ी है और निर्भर करती है. आप मानते हैं इस चीज को? करेक्ट. आज बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां आप जाएंगे ना तो हर दूसरे घर में एक जॉब वर्किंग की काम हो रही है. तो हमारे कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं. अगर आप साउथ विजिट करते हैं या नॉर्थ दिल्ली वगैरह आप जाते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो हर घर में एग्जिस्ट कर रहा है. तो वो क्या होता है, वो अगर आप एमएसएमई हैं, अगर आपको 2 लाख 5 लाख छोटे छोटे लोन्स मिलते जाते हैं और आपके पास बहुत अच्छी आइडियाज हैं तो आप इवेंचुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए भी. जो चीजें हमें ड्यूटीज पे करनी पड़ रही है या बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, उन सब चीजों को एटलीस्ट हम रिस्ट्रिक्ट करके अपने कंट्री में बनाएंगे तो एक देश प्रेमी का भी टैग मिल जाएगा हमें और काम भी अच्छा हो जाएगा. सारा रोजगार बढ़ेगा, लोगों को चीजें जो है वो अच्छे क्वालिटी की और लोकल मार्केट में मिलनी शुरू हो जाएंगी. तो ये जो है ये तमाम चीजें हैं. और अब मैं कुछ जो संदेश और कुछ प्रश्न है आपके लिए, सम मैसेजेस एंड क्वेश्चंस आर देयर फॉर यू. तो अब मैं वो आपके सामने रखती हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए. तो सबसे पहला संदेश जो है आपके लिए वो रूपांजना डे मैडम से आया है. मैडम इज सेइंग वेरी गुड टॉपिक एंड एन एक्सीलेंट स्पीकर. ऑल द बेस्ट मोहित. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. FCS अर्पण सेन गुप्ता, ऑल द बेस्ट मोहित. Thank you दादा. किरण शर्मा, ऑल द बेस्ट मोहित, कीप अप द हार्ड वर्क. थैंक यू सो मच. और अब एक ये क्वेश्चन है FCS अर्पण सेन गुप्ता जो है आपसे पूछते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग आत्मनिर्भर CS, दैट इज CS एज एंटरप्रेन्योर. पूरा टॉपिक जो है यहीं रिवॉल्व करता है अर्पणदा. बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको
उतना ही काम करना है जितना उनके पास काम आता है। अगर इवेंचुअली आप अपने क्लाइंट के साथ एक ऐसा रिलेशन डेवलप करते हैं या अपने ऑफिसेज में जहां आपको थोड़ा बोलने का मौका मिले, तो क्या है कि आप थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं। देन योर रोल विल नॉट बी ओनली लिमिटेड टू बोर्ड रूम्स एंड मेकिंग ऑफ एजेंडाज एंड ऑल। तब फिर क्या है कि आप एक बिजनेस आइडियाज में भी आ जाते हैं और इवेंचुअली आप एंटरप्रेन्योर बनने के तरफ फोकस कर सकते हैं। देयर आर बिग फोर्स फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो इसी तरह का कुछ आइडिया अगर कंपनी सेक्रेटरीज एक कॉलेजियम फॉर्म करके लाए कि जहां देयर आर फार्मर्स कल्टिवेटिंग क्रॉप्स इन द डिफरेंट कंट्री, बट देन दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, तो उनको वो चीज समझा दे। अगर आप एक मार्केटिंग कम सीएस बंदा रखे जो प्रोडक्ट्स को बेचने पे कंप्लायंसेस के साथ में समझाने में, एक रिलेशन बिल्डअप करने में अगर हेल्प करे, तो क्या है कि एक बैकएंड टीम जो है जो आपकी सारी पेपर वर्क संभालती है, और एक जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पीपल आर देयर हु आर गोइंग एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट। अगेन, सेलिंग योर प्रोडक्ट इज अ सर्विस that is your product. We as a company secretary cannot sell a product, we have to sell our service. तो सर्विस में भी क्या है ना कि you need to, अब आपके साथ भी पर्सनली ये चीज हुआ होगा कि जब आपके घर में कोई इंश्योरेंस एजेंट आ जाता होगा तो आप तो या तो दरवाजा बंद कर देते होंगे, या तो घर वालों को बोल देते होंगे कि प्लीज इसको बोल दीजिए कि नहीं आना है। ये क्यों होता है? बिकॉज मुझे अगर चाहिए 2 लाख का पॉलिसी, वो मुझे 20 के लिए पुश करता है, तो मेरा तो बजट 2 में है, 20 का तो है ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं है। तो पहले तो रिक्वायरमेंट जो एंड यूजर है उसकी समझनी है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझनी है कि ये बंदा इफ ही इज अ फार्मर तो इनको हम प्राइवेट कंपनी नहीं बना के देंगे, प्रोड्यूसर कंपनी बना के देंगे। इनको समझाएंगे कि आप 10 और मोर पीपल कैन कम टुगेदर वेयर इन वी विल बी ब्रांडिंग योर प्रोडक्ट्स। फिर एक कंपनी को ब्रांड्स के लिए, एंडोर्समेंट के लिए पकड़ लीजिए। तो दिस वे वी कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये एक बहुत प्लेन सिंप्लीफाइड एरियाज है वेयर इन टीम वर्क विल बी रिक्वायर्ड। एक बैक ऑफिस का टीम वर्क होगा और एक फ्रंट ऑफिस का होगा। तो इसमें क्या है ना कि काम जो है वो टेक्निकली सीएस ही कर रहे हैं, बट देन यू नीड टू फिट इनटू द शूज ऑफ योर कंज्यूमर्स। अगर आज पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, अगर नहीं फॉर्मूला रहेगा तो पीपल विल नॉट बिलीव यू एक्चुअली। तो अगर फार्मर एक लैंड दे रहा है, एक पार्शल ऑफ लैंड दे रहा है, उसके बदले में उनको कितना शेयर्स मिलेगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, जिसके अवज में वो कितना कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर क्रॉप्स देंगे उस कंपनी को, प्रोड्यूसर कंपनी को, उनको समझाना होगा। यू एज अ प्रोड्यूसर आर अ शेयर होल्डर, द कंपनी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, और आप उनसे अलग हैं। तो आपको वहां इन ल्यू ऑफ द शेयर्स यू हैव टू गिव योर कंट्रीब्यूशन। नाउ मी टेकिंग द कंट्रीब्यूशन, इसको कैसे मार्केट करेंगे, कैसे लॉजिस्टिक डेवलपमेंट होगा, कैसे इसकी प्रोडक्ट पैकेजिंग होगी, कैसे इसके लिए एफएसएसआई की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो सारा काम तो कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। अगेन, तो एंटरप्रेन्योरशिप तो हम सबके अंदर है, बट देन उसको मैपिंग करने की जरूरत है थोड़ा। जी, तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया मोहित। और अब मैं कुछ सवाल आपसे और करती हूँ कि आप वस्तुतः आप चंद्रपुरा के रहने वाले हैं। जी मैम। यू हेल फ्रॉम स्मॉल टाउनशिप है वो चंद्रपुरा। यस मैम। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि, और हमारे दर्शक भी निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज आप एक सफल कंपनी सचिव हैं, यू आर ए सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, आप स्टार्टअप्स का भी काम देख रहे हैं, आप एक अच्छी कंपनी में कार्यरत भी हैं, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तो आप अपने बचपन के विषय में कुछ बताएं, जिससे कि जो माता पिता या बच्चे जो हैं यहाँ देख रहे हैं आपको, वो कुछ सीख सके। बेसिकली आई वाज बोर्न इन अ बिजनेसमैन फैमिली, तो बिजनेस थोड़ा अपने ब्लड में ही था। फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता चला, तो आई माइग्रेटेड टू रांची फ्रॉम चंद्रपुरा। तो दिमाग में हमेशा ये रहता है कि इतने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को देख लिया है ना, तो अब लगता है कि कुछ ऐसे करूं जिसमें सारी चीजें धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड वे में हो और ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रमोट हो जाए। हर जगह एक ऐसा है अनइवन सा चीज है। एज अ स्कूल बॉय आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो कॉल अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। इवन इन सीएस करिकुलम मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बट देन आज ये फील होता है कि वो स्ट्रगल बहुत अच्छा था जो मैंने किया है, और आज गर्व महसूस भी होता है।
और घर वालों को भी अच्छा लगता है कि समवेयर ही इज स्टेपिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वर्क स्टाइल एंड ट्राइंग टू वर्क हार्ड। तो ये ओवरऑल ऐसा ही है। स्मॉल टाउन से जब आप आते हो तो हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि आप कुछ अच्छा करो, बड़ा करो, लोगों का एक्सपेक्टेशन है आपके प्रति, आपको लोग देख रहे हैं। तो वो एक ड्रॉबैक से ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी ही स्प्रेड करने का एक मीडियम है मेरे लिए। तो हमारे जो सीएस के विद्यार्थी आपको यहाँ देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि फाइनल का रिजल्ट जिस दिन आया होगा और आपने देखा होगा कि क्वालिफाइड नाउ, मतलब अब मोहित सालूजा से सीएस मोहित सालूजा, तो उस समय अपने करियर को लेकर के और जो तमाम चीजें थी उसको लेकर क्या बातें आपके दिमाग में आई? एक्चुअली मुझे काम करते हुए ही लाइक 10 साल हो गए हैं। तो एक समय ऐसा आ गया था कि एग्ज़ाम देना एक सिर्फ कंप्लायंसेस था। मेरे ऑफिस वालों को मैं बहुत थैंक्स हमेशा बोलता हूँ। दे नो इट दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम फॉर देयर सपोर्ट। मेरे जो इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑथोरिटीज़ हैं, मेरी सीनियर हैं मिस पियाली देव, और मेरे जो एचओडी हैं मिस्टर राजेश चूरा, जो एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो दे हैव ऑल गिवन मी गुड सपोर्ट एक्चुअली। तो उनके बिना भी ये पॉसिबल नहीं होता। रिजल्ट्स की बात करें तो मैं टैक्स के सब्जेक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होता था मुझे, तो उसके वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था। बट देन इवेंचुअली मेहनत हमेशा कर रहा था। मैं सरप्राइजिंगली एक ऐसा बंदा हूँ जो मेंबरशिप की सारी तैयारी करके रखा था, मेंबरशिप फॉर्म्स भर के रखा था, लेकिन एग्जाम नहीं पास कर पा रहा था। तो मैं वो फॉर्म्स को जरूर देखता था, रोज देखता था। जब एमएसओपी कंप्लीट हुआ तो उसी दिन रात को मैं वो सर्टिफिकेट एक बाकी रह जाता है एज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस, जिसको आप अटैच करके भेजते हैं सीएस इंस्टीट्यूट में। तो मेरा सारा फॉर्म्स एंड एवरीथिंग वाज प्रीफिल्ड एंड साइंड, बट ये बाकी रह गया था। तो ये करके मैंने उसी दिन ये अपलोड किया। तो वो ड्रीम तो हमेशा था और ये करना था, जिद भी था, और इवेंचुअली कर लिया, और अभी अच्छा ही कर रहा हूँ। अच्छा है, सबका आशीर्वाद है। जी, आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी जो विद्यार्थी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस कोर्स को करने वाले, डिफिकल्ट कोर्स है, लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और मोहित की तरह आप सब डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और एकदम लगे रहें कि एग्जाम क्लियर हो नहीं, और एसएमटीपी करें और तुरंत मेंबरशिप लें और काम करना शुरू करें। ये शेयर जो आपने किया है मोहित, ये बहुत मतलब बड़ी बात कही है आपने यहाँ पे आज ऑन स्क्रीन कि मतलब आपने सारी तैयारी पहले से करके रखी हुई थी, और जैसे ही आपने क्लियर किया, आपने एसएमटीपी किया, मतलब आपने सब कुछ प्लान किया हुआ था पहले से। और कहते हैं कि आप अपने तरफ से अगर प्लानिंग करके ठीक से चलते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि 5 इयर्स डाउन द लाइन अगर मैं पूछूं कि मोहित क्या कर रहे होंगे, मोहित और डिग्रियां जोड़ रहे होंगे, 3 डिग्री तो है आपके पास, कॉमर्स की डिग्री है, लॉ की डिग्री है, और कंपनी सेक्रेटरी हैं आप, तो और डिग्रियां जोड़ रहे होंगे, कोई इंडस्ट्री शुरू कर रहे होंगे, या किसी एमएसएमई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे, या किसी कंपनी के सीईओ हो गए हैं। आप कहाँ देखते हैं 5 साल के बाद खुद को? और एक बहुत विचित्र सी बात है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो कहना चाहता हूँ कि लास्ट 6 ईयर से मैं अपने कंपनी में हूँ और डेडिकेटेड काम कर रहा हूँ। और मेरी कंपनी ने मुझे इतना प्यार दिया है और सब लोग इतना मुझे मानते हैं कि अभी तो मुझे कुछ करना नहीं है, अपनी कंपनी की ही ग्रोथ को फोकस करके देखना है और रखना है। बिकॉज हमारे कंपनीज में भी यंगस्टर्स अभी काफ़ी ज्वाइन किए हैं एज अ प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। एक देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ टेक ओवर ऑफ द सन्स ऑफ द डायरेक्टर्स। तो उनका एक विजन और मिशन काफ़ी अलग है, तो उनको इम्प्लीमेंटेशन कराते और करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है काम करके, और नया सीखने को भी बहुत मिल रहा है। तो
फिलहाल तो अभी यही सोचा है कि अपने जो जितने कंपनीज हैं, अभी हमने रिसेंटली एक फूड चेन स्टोर्स को स्टार्ट किया है, डोसा का कॉफ़ी ब्रांडिंग करके, और अभी एक रिटेल स्टोर हमारी आ रही है। तो ये सारी चीज़ों में डीपली और इन्वॉल्व होके और इसके बारे में स्टडी करके, सारी चीज़ों पे एक्टिव पार्टिसिपेशन करके बहुत अच्छा लगता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सीनियर्स का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। तो ये पिछले 5 साल में तो मैंने सीवी नहीं बनाई है अभी तक अपनी, आज तक ना ही मैंने कभी किसी कंपनीज में सीवी मेल किया है। तो अभी मैं नहीं सोचा हूँ कुछ 5 इयर्स डाउन द कल से बेटर होना है आज, बस यही सोचता हूँ और करते आ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा बात है। बिकॉज एक भी रात अगर ऐसा हो कल से बेटर आज नहीं हो, तो एक रिग्रेट होता है कि आज ये गलत हो गया या आज नहीं मैंने कुछ सीखा, ये डे वेस्ट हो गया। ये कल से बेटर आज वाला प्रिंसिपल ही है अभी 5 साल के लिए। तो अगर ये प्रिंसिपल रहेगा तो 5 साल में बहुत आगे चले जाएंगे। जी, और मेरे और मेरे इस पेज की ये शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप उसी कंपनी में बने रहें, आप उसके डायरेक्टर बने और एकदम स्ट्रैटेजिक मैनेजर की तरह आप वहाँ काम करें, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग सब में सपोर्ट दें। ऐसे भी कहा जाता है, अभी एक बहुत बड़ी परेशानी जो है हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो जब क्वालिफाई करके जाते हैं तो हजार-हजार रुपए के लिए वो नौकरियां बदलते हैं 6-6 महीने के ड्यूरेशन में। तो आप जब फेथ नहीं रखते हैं कंपनी के ऊपर, तो फिर आपको बाद में जाकर के आपको वो आप में वो है ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। तो कोई भी अच्छी कंपनी आपको बाद में हायर वो रखेगी भी नहीं, आपको रिक्रूट करना नहीं चाहेगी। तो ये आपने बहुत पते की बात वो कही कि आप जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं और उसी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जो है जिस भी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें और आगे बढ़े, उन्नति करें और प्रोफेशन में जो है वो आप प्रोफेशन के लिए जो है वो बहुत काम करें और नाम रोशन करें, संस्थान का अपना और अपनी कंपनी का। अभी बीच में एक अमेंडमेंट्स आया था जिसके वजह से बहुत पैनिक हुआ था कंपनी सेक्रेटरीज के बीच में। तो कि ये लिमिट जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज आप अगर अपना ब्रांड वैल्यू एक कंपनी में इंडिविजुअल के हिसाब से भी अगर आप क्रिएट कर रखे हैं ना, वेर इन यू हैव जस्ट स्प्रेड योर होराइजन। आपने कभी सिर्फ अपने आप को मिनट्स तक कन्फाइंड नहीं रखा है, बोर्ड नोटिस तक कन्फाइंड नहीं रखा है। आप लेबर लॉ के भी कंप्लायंसेस देखते हो, आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंसेस, प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुटी मैटर्स को भी देखना है। लाइकवाइज अगर आपको ग्रुप कंपनीज में और स्टेट के बहुत सारे चीज़ें होते हैं, शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट है, ट्रेड लाइसेंसिंग है, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, जो कि चीज़ें छोटी बोलते हैं लोग, लेकिन क्या है इसका अगर आप एक ड्यू डेट और चार्ट बना करके रखते हैं तो ये आपको इवेंचुअली एक प्रोमोटर्स को भी ऐसा लगता है कि आई एम गिविंग और आई एम पेइंग देम फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग एक्चुअली। तो ये क्या है कि एक इंडिविजुअल कंपनी में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ 5 करोड़ एंड 10 करोड़ अगर अपने मन में ये है, और अगर एक कंपनी सेक्रेटरी को ये पता है कि मुझे अगर काम अच्छे से करके देना है, तो वो खुद अपना काम निकालेगा कि सर ये काम है, ये नहीं हुआ है और करना ज़रूरी है। तो समवेयर वो ब्रांड बिल्डिंग कंपनी के अंदर भी आप अपना करो, वेयर यू डोंट फील यूजलेस एंड योर मैनेजमेंट ऑल्सो डजंट फील कि ये बंदा यूजलेस है। तो उस केस में यू आर नॉट जस्ट अ पपेट हु इज डिपेंडेंट ऑन 5 करोड़ और 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल, कि उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई कैपिटल का एक बहाना दे करके आपको वो सीट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये भी बहुत यंगस्टर्स थे ये जो बहुत बातें ये पूछते थे कि सर नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ तो हम लोगों का खराब हो जाएगा बिकॉज पेड अप कैपिटल वाली लिमिट जो है वो कम हो गई है। तो ये था कि आप अपना अपना एम्बिट बढ़ा लो ना, अपने सर्कल, पढ़ाई और अपना जो हुनर है, टैलेंट है, स्किल्स है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। थोड़ा अकाउंट्स में भी कंट्रीब्यूट कर दो, थोड़ा लीगल में भी कंट्रीब्यूट कर दो। करिकुलम वाइज तो आर कोर्स इज बेटर देन एनी अदर थिंग्स, क्योंकि आप इनबिल्ड एक एमबीए के कैंडिडेट बन जाते हो, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है जिसमें आपको पता होता है गैप एनालिसिस क्या है, आज आप कहाँ हैं, कल आपको कहाँ जाना है, सारी चीजें पता चल जाती हैं आपको इवेंचुअली। अभी ये आपने बहुत पते की बात कही कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्थान यथोचित रहे
मतलब जो आप प्लेस डिजर्व करते हैं वो प्लेस आपको मिलता रहे, तो आपको खुद में वैल्यू एडिशन, और इंस्टीट्यूट आप में वो वैल्यू एडिशन करके आपको मार्केट में भेजता है। आपको आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करके और काम करने की, आप सफेद हाथी अगर बनकर रहना चाहते हैं तो फिर आप कंप्लायंस ऑफिसर बनिए और रहिए। और अगर आप हर एरिया में कंट्रीब्यूट करते, क्योंकि मैंने देखा है जब भी इंटरेक्शन होगा तो आप पूछिए बच्चों से तो उनका एक ही होता है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं कंप्लायंस ऑफिसर। कोई डायरेक्टर बनने की तरफ उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सीईओ नहीं बनना चाहता है। बाकी आप एमबीओ वाले जो बच्चे होते हैं या दूसरे प्रोफेशन के, उनसे पूछिए तो वो जो सबसे ज्यादा बोलेंगे कि आप मुझे सीईओ बनना, वो सीईओ बने या ना बने, लेकिन कम से कम ये बात तो लेकर के वो चलते हैं कि उन्हें जीवन में आखिर सबसे ऊंचे अगर जाना है तो कहाँ जाना है। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैल्यू अगर है तो मार्केट में आपका डिमांड खुद से होगा। एफसीएस अर्पण थैंक यू कह रहे हैं आपको। थैंक यू मोहित, नाइसली डिस्कस्ड। थैंक यू एक प्रश्न, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम शुभांकर दास and he is asking why scope of CS is less in government sector. पीएसयूज का जो एक अपना कैटेगरिकली एक वैकेंसीज आता है जिसको हमेशा आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बट देन अगेन पीएसयूज में अगर आप जाना चाहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग होती है। तो अगर आप ये फोकस करते हैं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के पहले आपको गाइडलाइंस को रीड करना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करना पड़ेगा कि वेदर दे आर कंपल्सरीली आस्किंग फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी कम एलएलबी विथ एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 years और 10 years, तो उसको आप पहले से ही फॉलो करो। अगर आप एक दिमाग में ये रखे हैं कि आपको एक कंपनी सेक्रेटरी बनना है गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयूज का, तो फिर आपका जो फोकस है वो अलग होना चाहिए इन कंपेयर टू दी अदर पीपल। जैसे अर्पण दा का था कि आप सीएस बनना चाहते हो लेकिन आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है साथ में, और वो स्किल्स को कैसे आप एनहांस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप पीएसयूज के लिए काम करो तो पहले पीएसयूज का एक चेकलिस्ट बना लो जहां पे सीएस की रिक्वायरमेंट है, और डे टू डे कितनी सारी वैकेंसीज आती है और कितना क्या क्राइटेरिया होता है उस वैकेंसीज का कि आप कितने ट्रेंड हैं, किस फील्ड में आप ट्रेंड है, और आपके पास में एडिशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। अगर आप इस चीज को मैप करके रख लेते हैं और आपके पास में अगर एक रेडी चेकलिस्ट है कि इतने सारे सेक्टर्स, और पीएसयूज में सीएस, असिस्टेंट सीएस और लीगल मैनेजर अदर रोल्स में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं और इवेंचुअली आप प्लेस होते हैं एज अ सीएस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टेपिंग स्टोन्स को धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। तो क्या है कि आप देखो एक लीगल मैनेजर का अगर वैकेंसी है तो अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो उससे आप पहले एक लीगल मैनेजर बन के वहां ज्वाइन करो, फिर असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, एंड देन यू क्रॉल अप टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। तो जी, सही बात, बिल्कुल सही बात कही आपने कि आपको ये देखना होगा कि उनका क्राइटेरिया क्या है और उसको आप कैसे फुलफिल कर पा रहे हैं, और अगर नहीं है तो आपको और क्या करना है। एक और प्रश्न है और उसका जवाब दिया जा चुका है, फिर भी मैं रख रही हूँ। द अमेंडमेंट डाइल्यूटेड, रणबीर अरोड़ा की तरफ से है ये। द अमेंडमेंट डाइल्यूटेड सेक्शन 383A of Companies Act 1956 twice. Section 383A was so important. ये थोड़ा क्वेश्चन है जिसमें आंसर देना मेरे लिए थोड़ा टफ है एक्चुअली। इसलिए टफ है क्योंकि रेगुलेटरी पॉलिसीज पे कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है अभी ऑनलाइन। तो मैं यही बोलूँगा कि कंपनी सेक्रेटरीज का रोल और भी तरीके से अपने सर्च कर सकते हैं और काम कर सकते हैं उसमें। तो ऐसे ही अपने को क्या है कि फोकस करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग है, बिकॉज वी कैन नॉट contradict with the circulars of the ministry or the amendment which is being brought by ministry. जी, तो मैं फिर से, मोहित पहले भी कह चुके हैं और मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि एक सेक्शन आपको एंट्री तो दिला सकता है लेकिन वैल्यू आपको अपना खुद प्रूव करना है। तमाम ऐसे प्रोफेशन है जहाँ कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये डिग्री वाला ही आदमी चाहिए या फिर आपको यही आदमी ये काम कर सकता है, लेकिन वहां भी रोजगार है और लोग वहां पे काम कर रहे हैं बिना किसी कंपल्शन के। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये मिनिस्ट्री और पॉलिसी जो मेकिंग या रेगुलेटरी बॉडी उसका इशू है। तो इस प्लेटफॉर्म पे इसके
बारे में हम और ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। जो सांकेतिक जो इसका जवाब था वो हमने दे दिया है आपको। मोहित, अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। अब हम कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक और प्रश्न मैं पूछती हूँ कि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी का जो पूरा जो लीगल और बाकी जो सेक्रेटेरियल अफेयर्स है वो सारा आप देखते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों में को भी पढ़ाते हैं, जो सीएस के बच्चे हैं। आप सोशल वर्क से भी जुड़े हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट ये कैसे आप करते हैं? खास करके जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब में होते हैं, उनको उनके प्रोफाइल की तरफ जब देखा जाता है तो वो कन्फाइंड होते हैं कि वो कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आप अपने लिए कैसे समय निकाल पाते हैं कि आप इन सब जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट कर पाएं, और खासकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने और उनको पढ़ाने में ऐसा आपको क्या ऐसा सुख मिलता है कि आप जो है समय निकाल करके उनके पास पहुंच जाते हैं उनको पढ़ाने? पढ़ाना तो मैम एक्चुअली एक सबका एक हॉबी भी होता है, और एक अंदर से एक इनर फीलिंग आती है कि आई यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पढ़ाना इज नॉट लिंक्ड विद अर्निंग एक्चुअली। तो वहाँ क्या है कि एज अ पार्ट, बिकॉज आप भी उस फ्रेटर्निटी से हैं तो आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बट देन ये ऐसा फील होता है कि क्योंकि अभी जस्ट बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है सीएस बने हुए, तो उनको फील कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट भी अब ऐसा स्टेप्स लेता है जहाँ पे यंगस्टर्स को दे आर प्रमोटिंग। तो ईआईआरसी की तो तारीफ करनी पड़ेगी, जो एग्जिस्टिंग पीपल आर देयर और जो पहले भी थे, सब लोगों ने बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया है। अब लाइब्रेरी ओपन हो गया है सबके लिए, वाईफाई है, आप एक ऐसे एम्बियंस। बिकॉज मेरा ऐसा हमेशा से था कि हमारा इंस्टीट्यूट एक आईआईएम कल्चर को फॉलो करे, जहाँ एक ऐसा हो कि प्रैक्टिकल चीज़ें भी बहुत समझने को मिले लोगों को। क्योंकि लोग फॉर्म फाइलिंग की बात करते हैं। मैं जब एग्जीक्यूटिव और फाइनल में था तो मुझे भी नहीं पता था कि फॉर्म्स होते क्या हैं, बट ई फॉर्म्स होते क्या हैं। बट देन नाउ बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, स्मार्टफोन्स है, कंप्यूटर है, वाईफाई है, तो पीपल आर कनेक्टिंग। तो एक पढ़ाना भी एक नया वे से अच्छा लगता है। और एक कह सकते हैं कि बहुत इनर पीस है मेरे लिए पढ़ाना। तो वो तो क्लासेस तो अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ट्वाइस अ वीक थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है पढ़ाने के लिए, वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप ऑफिस चले जाते हो। ऑफिस में अगेन वेरी कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट वेयर इन यू हैव वेरी सपोर्टिव कॉलीग्स, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दे गिव यू द इंडिपेंडेंसी टू लर्न थिंग्स, एक्सप्लोर ऑन न्यू थिंग्स, new ventures coming. I am blessed with the new promoters who are stepping in to new ventures, तो उसके लिए स्टडी करना, उनको बताना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो आप कंपनी के लिए भी करते हो और खुद के लिए भी हो जाता है आपके लिए। तो वो एक काइंड ऑफ आपका एक पोर्टफोलियो डेवलप हो जाता है कि आप इतने सेक्टर्स में, टी गार्डन से लेकर के इंश्योरेंस से लेकर के एक्सपोर्ट से लेकर के सारी चीज़ों पे काम कर चुके हो, तो आपको इतना कम उम्र में इतना सारा एक्सपोजर मिल जा रहा है करने के लिए। जी, सही बात है। तो श्रेय तो आपको ही जाता है कि अपने आपका जो व्यस्त जो शेड्यूल होता है उसमें से भी आप समय निकाल करके और इतने सारे कार्यों में लगे हैं। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी ये जो कोविड-19 पेंडेमिक का जो समय है, इसमें जो हमारे संस्थान की परीक्षाएं हैं वो कई बार स्थगित हुई, और कोई भी संस्थान जानबूझ करके परीक्षाओं को स्थगित नहीं करना चाहता है, क्योंकि उससे उसका ही जो सुचारू रूप से जो उसके जो काम होते हैं वो रुकते हैं, उसमें व्यवधान आते हैं। तो मैं अब ये चाहूंगी कि बच्चे जो हैं हमारे यहाँ के, जो ये जो घर में बंद हैं अभी, ऑनलाइन पढ़ाई जितनी हो पा रही है उतनी वो कर रहे हैं। बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपना जो है वो सिलेबस पूरा कर लिया होगा, और अभी जो है कई बच्चों से ऐसी जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है मैम, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, और बहुत है कि अब एक ही बार दिसंबर में एग्जाम होगा, वो भी अगर चीजें ठीक ठाक चलेंगी तो आप उनके लिए यहाँ से एक संदेश दें, क्योंकि आप बच्चों से भी जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ आप उनके लिए एक संदेश दें कि ये जो अतिरिक्त समय उन्हें मिला है, क्योंकि हमें याद है कि हम जब पढ़ाई करते थे तो ऐसा लगता था कि एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा मिल जाता तो कितना कुछ पढ़ लेते। तो ये तो उनके लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। तो आप उनको थोड़ा बताएं कि वो ये जो समय उनको ज्यादा मिला है अभी,
how they should use this time? एक ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है बच्चों के लाइफ में या हमारे लाइफ में भी, जब हम मोनोटोनस रिपीटेड काम करते हैं तो हमारा दिल उससे बहुत उब जाता है. वी डोंट ट्राई टू फोकस मच ऑन इट. सिलेबस अगर बच्चों का कंप्लीट है, वेरी गुड. एक अलग तरीका है जिससे सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा. मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि देयर आर एनुअल रिपोर्ट्स. आप एनुअल रिपोर्ट्स ऑनलाइन सर्च कीजिए, रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर की एनुअल रिपोर्ट्स, उसमें खोल करके चेक कीजिए अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है. आपके एग्जाम में ये प्रोविजन है कि 161 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग, लेकिन एक्चुअल में क्या रेजोल्यूशन कैसे बना है, कैसे एक प्रियम्बल को प्लेस किया गया है. द चेयरमैन इन्फॉर्म द बोर्ड that this person is expertised on this particular area, so we have proposed to induct him as a director. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, 161 तो हम लोगों ने मगअप कर लिया था बुक से कि टॉक्स अबाउट द एडिशनल डायरेक्टर एंड वी विल राइट इन एग्जाम. बट एक्चुअल क्या है ना, अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं या अगर आप सीए क्लब में अगर लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर, आप जब फ्लिपकार्ट में अगर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आप 4 फीडबैक पहले चेक करते हैं कि इस ईयरफोन में अच्छा सुनाई देता है या इसका दाम कम है, इसमें क्या है. तो अगर फीडबैक चेक करना है तो आप सीए क्लब में भी देख लो ना कि अगर मेमोरेंडम बना रहे हैं तो उसमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये कंपनीज में ऐसे है, इसको कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं. प्लस एमसीए का वेबसाइट खोलिए, एनएससी बीएससी का वेबसाइट खोलिए, आरबीआई की वेबसाइट खोलिए, अगर मौका मिले आईआरडीए की वेबसाइट खोलिए. बहुत सारा सर्कुलर्स है, बहुत सारा चीज है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये प्रैक्टिकली भी हो रहा है. और फिर क्या ना, वो पढ़ाई से उसको आप कोरिलेट करके एक अलग चीज भी आपको पढ़ने को मिलेगा और आप इंटैक्ट भी रहेंगे और ये फ्यूचर में भी काम आएगा. तो ये 3 फोल्ड इफेक्ट है. एक, आपका प्रेजेंट एग्जाम के लिए रिवाइज हो रहा है. दूसरा, यू आर फाइंडिंग समथिंग एल्स विच यू डोंट नीड टू रीड इन दी बुक्स. एंड थर्ड, योर फ्यूचर इज अगेन गोइंग टू बी ब्राइट, क्योंकि आप चीजें ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन ऐसे ड्राफ्ट हुआ है, ये पूरा एनुअल रिपोर्ट में इतने सारे सेगमेंट हैं. अगर सीएसआर की बात करते हैं सेक्शन 135, उसमें स्पेंडिंग की जो अमेंडमेंट्स आई है वो क्या कहती है. तो बच्चों को यही है कि आप बुक्स को नहीं छूना चाहते, आप मत छूइए. डोंट गो थ्रू दोज बुक्स अगेन एंड अगेन, आपका दिमाग खराब ही होगा. आप इनोवेटिव वे में आ जाइए, आप गूगल में टाइप कीजिए, यूट्यूब में आप देख लीजिए, थोड़ा मौका मिले अपना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लीजिए. कभी इवनिंग में किसी फैकल्टी से परमिशन लेके उनके खाली टाइम में कुछ डिस्कशन कर लीजिए. तो ये सारी एक इनोवेटिव वे है और हमें करना चाहिए एक्चुअली. जब आईआईटीएंस बच्चे 10 की तैयारी करते हैं, 12 की तैयारी करते हैं, तो साथ में फिटजी और क्या क्या कोचिंग करते हैं. तो हमारे भी ऐसे हैं कि अगर कुछ अलग से कर ले तो क्या है, वो फ्यूचर में प्रैक्टिकली दे आर गोइंग टू हेल्प. इसलिए यही एडवाइस मेरा है बच्चों को, तो कि आप एनुअल रिपोर्ट्स या यूट्यूब में एजीएम कैसे कंडक्ट हुआ है, ये सारी चीजें देखें प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ें और आप जो समय है आपका उसका आप सदुपयोग करें, उसको यूज में लाएं. ये यही कह रहे हैं मोहित जो हैं हमारे गेस्ट आज के. एक और संदेश है एफसीएस अर्पण सेन गुप्ता के लिए, और ये भी वस्तुतः वही बात कह रहे हैं जो बात हम कहते आ रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से, कि अपॉइंटमेंट शुड बी डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी एंड इट शुड नॉट बी देयर एज अ कंपल्शन के तौर पे वो नहीं होना चाहिए. तो अब मैं आपको शुक्रिया कहूंगी मोहित कि आपने आपका जो व्यस्त शेड्यूल होता है उससे समय निकाला और आज आप यहाँ इस पेज पर आए और एक बहुत ही सार्थक जो है बातचीत हुई, और आपने जो जानकारी थी स्टार्टअप्स को लेके, एमएसएमई को लेके, और कुल मिलाकर कहे अगर आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट में कंपनी सेक्रेटरीज का क्या योगदान है, इस पे बहुत ही सार्थक आपने व्याख्यान दिया, चर्चा की, और हम इसके लिए आभारी हैं आपके कि आपने समय दिया. और अब हम नियत समय से चूंकि आगे ही बढ़ गए हैं, 7-8 मिनट आगे बढ़ गए हैं, तो अब मैं अगर आप कोई संदेश ऐसा है जो आप लोगों को या जिन लोगों से इस कोविड-19 आउटब्रेक के चलते आपका मिलना जुलना नहीं हो पाया है बहुत दिनों से, तो इस पटल के जरिए अगर आप देना चाहते हैं उनको तो वो संदेश दें, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करें.
संदेश तो मैम यही है सबके लिए कि सब अपना ध्यान रखें। 2020 इज नॉट ऑल अबाउट अर्निंग एंड ग्लोरीफाइंग। अभी अपने हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वंस दिस पैंडेमिक इज ओवर वी विल हैव एम्पल टाइम टू वर्क एंड लिव अ डिसेंट लाइफ। अभी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, फोकस जो होनी चाहिए, वो अपने हेल्थ पे होना चाहिए और लोगों को जागरूक करे और लोगों को भी हेल्प करे जहाँ तक पॉसिबल हो, घर पे रहें और जो जो भी मिनिस्ट्री टाइम एंड अगेन सर्कुलर ला रही है उसको फॉलो करे और ध्यान रखे सब अपना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। और हम आपसे एक यहाँ पे एक वादा भी चाहेंगे कि अगली बार भी जब हमारी टीम आप तक पहुंचेगी ऐसे ही किसी विषय पर आपको आमंत्रित करने के लिए, तो आप फिर से हमारे इस पेज के लिए जो है अपना समय देंगे हमें, मैं ये उम्मीद करती बिल्कुल हूँ। मैम, बिल्कुल। आपका ये ऑनेस्ट एफर्ट भी अप्रिशिएबल है। लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं और आप ऐसे करते रहिए बिकॉज वी ऑलवेज नीड अ लीडर, समवन हु लीड्स द शो एक्चुअली। तो इस शो के माध्यम से एटलीस्ट एक डिफरेंट टॉपिक्स को आप लेकर के कवर कर रहे हैं। तो एक क्या है कि लोगों, जैसे आपने बताया कि लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं घर पे, तो माइट भी आज मेरे प्रोग्राम के माध्यम से एक थोड़ा पॉजिटिविटी आया होगा लोगों के बीच में कि हमें कैसे आगे सोचना है और कैसे आगे करना है। तो होपफुली आप ये अच्छे काम को बरकरार रखिए और सब जी, अच्छा। दर्शकों का अपने जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के जो सदस्य हैं उनका और आप जैसे स्पीकर्स का अगर सहयोग रहेगा तो हम जो है जो है वो एपिसोड दर एपिसोड जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे और ये जो शो है, टॉक शो है, वो यूं ही चलता रहेगा। और एक सूचना मैं और आपको यहाँ देती हूँ कि स्टार्टअप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है या आपको प्रोजेक्ट बनाना है या एमएसएमई के विषय में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मोहित सालूजा जी के या जो बच्चे हैं हमारे संस्थान के, उनको अगर किसी तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मोहित जी के जो तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, वहाँ जाकर के आप जो है उनसे जानकारी ले सकते हैं। मोहित आप सबकी मदद करेंगे। और अगर आप कोई प्रश्न इस पटल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, इस पेज के माध्यम से पूछना चाहते हैं, बाद में जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप उसे यहाँ पोस्ट कर दें कमेंट सेक्शन में, और मैं जो है वो प्रश्न आपका मोहित जी तक पहुँचाऊँगी और फिर उस पे आपको जो भी जवाब वो देना चाहेंगे वो आपको जवाब मिलेगा और आपकी समस्याओं का जो है वो समाधान होगा। तो इसी के साथ आपको दोबारा पुनः शुक्रिया कहते हुए मैं अब जो है आपसे विदा लूंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप जोहार।